Good morning, class. In previous class, we discussed about some numerical related to the mechanical translation system and mechanical rotational system, right? And in today's class, we will discuss about the some analogous system. Analogous means, if I am talking about, there are two types of system, mechanical system or electrical system, right? So analogous means when we are talking about the mechanical system, then we can say that mechanical system is analogous to the electrical system when we are changing the some physical quantity, right? So आप मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो और मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो एनालॉगस मींस इक्विवेलेंट, राइट? So there are four types of analogous system. That first we will discuss, that is force voltage analogy. What is mean that force voltage analogy? That force in mechanical system is equivalent to voltage in electrical system. अगर मैं force की बात करता हूँ, that is the in mechanical, and if I am talking about the voltage in electrical, so we can say that the force in mechanical system is equivalent to voltage in electrical system, right? तो mechanical system तो आपने already देख लिया है. तो आपने जो system देखा है standard जो mechanical rotational mechanical translation system था, तो उसी को ही अपन क्या कर रहे हैं, अपन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर करा रहे हैं, राइट? तो उस पर्टिकुलर सिस्टम से कंपेयर कराने के लिए वी ऑब्जर्व दैट वन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सर्किट in electrical, that is series RLC circuit, right? So if there are three elements R, L and C in series, when we applied a AC voltage source to these three elements, right? And the current flowing this circuit is I of t or I, right? So when we applying the KVL in this particular loop, so according to the KVL, the voltage applied is equal to the voltage, sum of the voltage stroke, right? So voltage applied is E, and what are the voltage? Voltage across the R plus voltage across the L and voltage across the C. So E equal to, when we are applying the KVL, so voltage across R is I into R, and voltage across L is L di by dt, and voltage across C is 1 by C I dt, right? These three voltage sum is equal to total voltage, right? We know that I is defined as change in charge with respect to time, or we can say I equal to dq by dt. So you can put that I equal to dq by dt. So see, this is dq by dt. When we differentiate I with respect to time, then this is the d square q upon dt square, right? So di by dt becomes d square dq by dt. When we applying the integration di by dt, we can put dq by dt into dt, right? That means this becomes q, right? So this becomes q, and इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप रीअरेंज कर सकते हो. ये मैंने आपको यहाँ और ये मैंने शिफ्ट कर दिया, राइट? तो इक्वेशन आपके जो वोल्टेज इक्वेशन जो है वो आपके बन चुके हैं फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, राइट? तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट? Then we compare the two types of system, electrical and mechanical. So in mechanical system, there is the equation of force is given by m d square x upon dt square plus b dx by dt plus kx, right? Here m is the mass, d is the damping coefficient, and k is the friction coefficient, right? And x is the displacement, and f is the force. So if we are comparing these two equations, then we observe that E, when already we know that the force is equivalent to voltage, right? So if this particular we are assuming that the force is equivalent to voltage, so we can say that the inductor in electrical system is equivalent to mass in mechanical system, and charge in electrical system is equivalent to displacement in mechanical system. Resistance in electrical system is equivalent to or analogous to damping coefficient, and this 1 by C in electrical system is equivalent to friction coefficient, right? And already we know that the charge is equivalent to voltage, sorry, displacement, right?
So this is the analogous system. So according to this observation, we can write, if we are comparing that mechanical translation system and electrical system, so we can say that force, मैंने just अभी आपको बताया, force is equivalent to voltage, mass is analogous to the inductance, K is reciprocal of capacitance. यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, 1/c आएगा, ठीक है। यहाँ पर 23 पेज नंबर पे ये आप करेक्शन नोट डाउन कर लेना, रेसिप्रोकल ऑफ सी मींस 1/c, तो यहाँ 1/c आएगा, करेक्शन कर लेना। डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस and displacement is equivalent to charge, right? So this is the analogous system when we are comparing mechanical translation system and electrical system, right? So this is the force voltage analogy, ठीक है। ये टेबल जो है वो आपको याद करनी है, ठीक है। जब भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क का मतलब है आपको मेमोराइज करना, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी है, आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, राइट। एनी डाउट in this particular topic? Guys, please respond in chat box. Then we go for the second analogy, that is torque voltage analogy. This torque voltage analogy means that torque in mechanical rotational system is analogous to voltage in electrical system, right? In earlier topic we saw that mechanical translation system is equivalent to electrical system, right? In this particular topic, torque in mechanical rotational system is equivalent to voltage in electrical system, right? When we are writing the rotational mechanical system equation, torque equal to J d square theta upon dt square plus B d theta by dt plus K theta, and already we know that what is the equation of electrical system. So what is the electrical system equation? E equal to L d square Q upon dt square plus R into dq by dt and plus 1 by C into Q, right? And when we are comparing, when we are assuming that torque is equivalent to voltage, that is torque voltage analogy, that means J is equivalent to L, right? Theta is equivalent to Q and V is equivalent to R and K is equivalent to 1 by C, right? So when we are comparing this particular equation number 3rd and what is the equation? Equation number 1, right? Then we can write the torque is analogous to voltage E. आप ऊपर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। J is equivalent to inductance, B is equivalent to R, K is equivalent to reciprocal of C, capacitance 1 by C, and the angular displacement is equivalent to charge, right? So torque voltage analogy ये भी आपको मेमोराइज करनी है, ये टेबल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी। सिर्फ और डिफरेंस क्या है, लास्ट वाले टॉपिक के अंदर आपका पास मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम था, यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, राइट। सेम आपने काम किया, कंपेयर कराया, ठीक है। नेक्स्ट एनालॉजी इज फोर्स करंट एनालॉजी। फोर्स current analogy, that means force in mechanical system, mechanical translation system, and current in electrical system. So according to the force current analogy, we observe that when we are taking standard circuit, that is the parallel RLC circuit. फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में अपन ने क्या लेना पड़ा था, मुझे सीरीज आरएलसी सर्किट। तो फोर्स करंट एनालॉजी मुझे लेना पड़ेगा पैरेलल आरएलसी सर्किट, राइट। तो दिस इज द पैरेलल आरएलसी सर्किट, these 3 elements are connected in parallel, and this particular circuit, if you are applied a current source I with the value of I
and voltage across these all these elements are 3 because these 3 elements are connected in parallel. So if you are assuming that voltage across all the element is E. So if we applying KCL at this particular point, that means this current I, that incoming current is equal to outgoing current. This is the concept of KCL. So what we can write, that I equal to current through the resistance, that is E by R, current through the inductor, that is 1 by L integration E dt, you already know that, and the current through the capacitance, that is C E di by dt. Suppose this is IR, this is suppose IL, and this is suppose IC. So I equal to IR plus IL plus IC. So we can apply KCL here. And we know that the magnetic flux linkage is given by the phi equal to integration V dt, right? Or here voltage not V, that is E, right? So phi equal to E d by dt, or we can write E equal to d phi by dt. This is the relation between voltage and flux linkage, right? So according to these two equation, these particular terms, we can write flux, and this term we can write, if you are putting the E, that we can write this is E. If you differentiate di by dt, so d square d phi upon dt square, right? So here or here E, for the E equation d phi by dt, right? So here E we can write d phi by dt. This particular equation becomes phi, and this equation become, this term become d square phi upon dt square, right? तो मैंने ये यहाँ पे पुट किया है. अब आपको कंपेयर कराने के लिए इसको अपन रीअरेंज कर देते हैं. तो c d phi upon dt square, इसको मैंने फर्स्ट में लिया है, then 1 by r d phi by dt and 1 by l phi, right? This is the equation of current in parallel RLC circuit. When we are comparing this particular equation to the mechanical translation system equation, this is the equation for mechanical translation system, and this is the equation for electrical system. When we are comparing, or we are assuming that if voltage is analogous to current, then we observe that this capacitance in electrical system is equivalent to M mass in mechanical system. Flux in electrical system is equivalent to linear displacement in mechanical system, and 1 by R in electrical system is equivalent to damping coefficient in mechanical system, and this 1 by L in electrical system is equivalent to spring constant in mechanical system, translation system, right? So according to the observation, we can write this mechanical translation system is equivalent to electrical system according to the force current analogy. So we can write that force equivalent to current, mass is equivalent to capacitance, damping coefficient B is equivalent to or analogous to 1 by R, spring constant K is equivalent to 1 by L, and X is equivalent to flux phi. And अब इसको वेलोसिटी को भी आप कर सकते हो, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा. तो आप चाहो तो इसको आप पी वोल्टेज को भी आप वेलोसिटी को भी आप लिख सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपको मेमोराइज करना है. इट इज कॉल्ड द फोर्स करंट एनालॉजी. देन इन द सेम मैनर वी कैन राइट द एनालॉगस सिस्टम फॉर द टॉर्क करंट एनालॉजी. So in torque current analogy, a torque in mechanical rotational system is equivalent to or analogous to current in electrical system, right? So first we can write the equation of torque in mechanical rotational system, that is T J d square theta upon dt square plus B d theta by dt plus k theta, right? Then if we are comparing the equation for the electrical system, what is the electrical system? E equal to L into d square q upon dt square plus R into dq by dt and plus 1 by C. That is the equation for electrical system.
and if you are assuming that the torque is equivalent to what? Voltage, right? Sorry, not we are writing the equation of current, not we are comparing the current, where we are writing the equation of current. So we can write the equation of current, not voltage, because we are analogous to the current, so we can write the equation of current, right? So equation of current, I is equal to C d square phi upon dt square and plus 1 by r d phi by dt and plus 1 by L phi. This is the equation of 1 by L phi. When we are comparing or assuming that T is, if T is analogous to current, that is torque current analogy. So J is equivalent to capacitance C and B is equivalent to or analogous to 1 by R and K is analogous to 1 by L and this theta is equivalent to phi, right? So according to this observation, we can write that torque is equivalent to current, moment of inertia is equivalent to C, damping coefficient कि मैंने लिखा नहीं है, damping coefficient it is B, B is equivalent to 1 by R and K is analogous to 1 by L and angular displacement theta is analogous to phi. तो ये भी टेबल आपको मेमोराइज करना, राइट? तो there are 4 type of analogy we have discussed. First is force voltage analogy, second torque voltage analogy, and then force current analogy and torque current analogy, right? और एग्जाम्स में से आपके जो क्वेश्चंस बनेगा वो फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट पूछेगा, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, राइट? So there are 2 types of analogy, force voltage and force analogy are very important. Any doubt in this topic? So we move to the numerical part. First, I will show you the some rules for how to draw the analogous system, and then we go for the numerical part, right? So first, it is the force voltage analogy rules. So first we observe some rules, and then we go for the numerical part, right? So फोर्स वोल्टेज एनालॉजी रूल्स का क्या मतलब है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम गिवन होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैकेनिकल सिस्टम इनटू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट? एंड in any question is asked by using some technique, right? So by using suppose we are observing that force voltage analogy, right? So for this particular observation, some standard rules are given. So you can apply that rules and you will get the electrical system, right? So first rule is, in mechanical system, the elements having same velocity are said to be in series. क्या मतलब है कि अगर आपके पास जितने भी एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल सिस्टम, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि वो किस में है, सीरीज के अंदर है, राइट? इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑलरेडी वी नो दैट द एलिमेंट्स इन सीरीज विल हैव द सेम, राइट? अगर मैकेनिकल सिस्टम में कोई एलिमेंट अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर मैकेनिकल सिस्टम में सीरीज में कनेक्टेड है, उसको मैं कहूंगा दैट इज वेलोसिटी आर सेम, ठीक है? और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर कोई एलिमेंट सीरीज में है तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि उसमें क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, दैट ईच नोड और मास इन मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्डेंट टू क्लोज्ड लूप इन सिस्टम. कहने का मतलब है अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ मास हैं, ठीक है, आपने जितने नंबर ऑफ मास अगर काउंट करे हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, क्लोज लूप होंगे, उतने आपके पास क्या होंगे, क्लोज लूप होंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम. सपोज मेरे पास, सपोज वी हैव
two mass in any mechanical system, so there are two closed paths, right, in electrical system. ठीक है, same in these 2 points are approximately same. The number of message in electrical system is message nothing but the loop, right? So number of meshes in electrical system is equivalent to number of mass in mechanical system. जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्लोज लूप का मतलब ही क्या है, मैसेज है। तो जितने नंबर ऑफ के मास होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ मैश होंगे, लूप होंगे, राइट। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू मासेज। ठीक है, अगर मान लो कि दो मास के बीच सपोज ये मास m1 है, ये मास m2, राइट, तो उसके बीच में जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे इन मैकेनिकल सिस्टम is represented as the common element between the two meshes, right? common element का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर बताया तो common element का क्या मतलब है। common element का मतलब है कि सपोज मान लो आपके पास, सपोज इस तरह के मान लो मेरे पास ये कुछ इस तरह का लूप बन रहा है। ठीक है, दो लूप है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट लूप है, ये दूसरा, या मेश मान लो या लूप मान लो। ठीक है, दो मेश है, तो दो मेश के अंदर जो कॉमन वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, अगर मेरे पास दो मास है m1 और m2, राइट, तो इसके बीच में जो भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो कहाँ पर आएंगे, इस पर्टिकुलर कॉमन पार्ट पे, राइट। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है, दैट इज just open, that is element connected between two masses in mechanical system is represented as the common element between two meshes electrical system, right। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको किस तरीके से आप किसी मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके रूल्स अप्लाई करने, कैसे रूल्स अप्लाई करने वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ सिस्टम। आपके पास मास m1 m2 m3 तीन मास है, और k2 b2 k3 b3 और b1 कनेक्टेड है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, there is big support, there are three mass, one, two, and three। Okay, there are three mass m1 m2 m3, right। Here spring is attached and damper is attached, here again spring is attached and damper attached, right, or here only damper is attached, right। This is the b1 or this is b2, this is the b3, or this is k2 or k3, and this applying the displacement are x1 x2 and x3, right। So here displacement is x1, here displacement is x2 and displacement is x3, or external force applied is F, right। So this is the मैकेनिकल सिस्टम। एंड अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रखा और क्या गिवन है। ठीक है, ड्रॉ द एनालॉगस नेटवर्क ऑफ द गिवन सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। बाय यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉग। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ द गिवन सिस्टम बाय यूजिंग द फोर्स वोल्टेज एनालॉग। तो आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको जो टेबल बताई थी फोर्स वोल्टेज एनालॉग की, तो उसका आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, मास इज इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस, K इज इक्विवेलेंट टू 1/C, B इज इक्विवेलेंट टू R, S इक्वल टू Q। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको पहले लिख देना है ताकि आपको ये पता होना चाहिए। द फोर्स is equivalent to voltage and mass is equivalent to
इंडक्टेंस K इज इक्वल टू 1/C, ताकि आपको क्या बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। V इज इक्वल टू R एंड X इज इक्वल टू चार्ज Q, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम होगा आपके पास नंबर ऑफ मास काउंट करना, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मास कितने हैं, नंबर ऑफ मास इज 3। तो नंबर ऑफ मास मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैशेज, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मैश बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैश बना रहा हूँ, नंबर ऑफ मैश यहाँ पे सपोज मैं बना रहा हूँ, इससे दिखेगा नहीं, दूसरे से बना देता हूँ मैं, इससे बना लेते हैं। यहाँ पर कितने मैश बनाने, 3 मैश बनाने, राइट। तो इस तरह से मैं 3 मैश बना, 3 मैश का मतलब 3 क्लोज लूप पाथ, राइट। तो दीज 3 आर क्लोज लूप पाथ। किसी भी पार्ट पे डाउट आए तो आप वहीं पूछ लेना। ये आपके पास 3 मैंने क्लोज लूप बना दी, ठीक है। क्लोज लूप मतलब 3 नंबर ऑफ मास मीन्स 3 मैशेज, राइट। मैशेज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मैश बना दिए, राइट। अब 3 मैश बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जहां पर फोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखो फोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, वोल्टेज। यहाँ मैंने वोल्टेज बना दिया, तो एफ है, या क्या बनेगा, दैट इज ई। तो मैंने वोल्टेज बना दिया ई। तो आपका इसका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने बताया था दैट पर्टिकुलर दैट बिटवीन टू मासेज, यहाँ पे देखो, दैट बिटवीन टू मासेज दैट 4 पॉइंट, द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू मासेज इन मैकेनिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू मैसेज, राइट। तो देखो यहाँ पे M1 और M2 की बात करूं, ये तो आपका फर्स्ट लूप है, ध्यान में करना, ये फर्स्ट लूप है, ये आपका सेकंड लूप मान रहे हैं, इसको आप थर्ड लूप मान रहे हो, ठीक है। फर्स्ट I1 I2 I3, ठीक है, 3 लूप अपन कंसिडर करके चलते। तो मास M1 और M2 के बीच में क्या कनेक्टेड है, सिर्फ V1 कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, V1 कनेक्टेड है। और इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास फर्स्ट लूप हुआ, मास M1 मतलब फर्स्ट लूप, और ये आपके पास सेकंड लूप हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड लूप के बीच में जो कॉमन जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, राइट। इसमें मैं क्या बनाऊंगा, B1 कंसिडर करके चलूंगा, राइट। तो B1 मेरे पास, B1 का मतलब क्या हुआ, R1। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, R1। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एलिमेंट्स कनेक्टेड बिटवीन टू मासेज इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू मैशेज, राइट। दो एलिमेंट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो आपके पास दो मास के बीच में एलिमेंट रहेगा, राइट। मैंने R1 बना लिया, ये आपका खत्म। इसके बाद में M2 और M3 में कौन कौन से एलिमेंट है, K2 और B2, राइट। तो M2 और K2 का मतलब K2 हो जाएगा आपके पास 1/C2 और B2 क्या हो जाएगा, R2, राइट। तो ये किस किस के बीच में है, M2 और M3, दैट मीन्स लूप 2 और लूप 3, राइट। तो एक तो बन जाएगा आपके पास 1/C2 और एक आपके पास बन जाएगा R2, दिस इज द R2। अब आपको एक कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये मेरे पास जो है, आपको लग रहा है कि ये पैरेलल में है, राइट, ये यहाँ पर सीरीज में आ रहा है। तो हमेशा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो एलिमेंट है वो ऑलवेज यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड होगा, किसमें, सीरीज में। ये मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताया था, द फर्स्ट रूल इज in mechanical system the elements having the same velocity are said to be in series। तो हमेशा जो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वहां पे दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी सेम होगी, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे। तो ऑलवेज आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जो एलिमेंट कनेक्ट करने हैं वो किसमें कनेक्ट करने हैं, सीरीज में, राइट। ये भी आपका एलिमेंट खत्म, ये भी एलिमेंट खत्म। उसके बाद में आपके पास M3 और रेफरेंस आ गया, नीचे वाला रेफरेंस पॉइंट है, इसी द रेफरेंस। तो रेफरेंस और K3 और B3, एलिमेंट क्या है, K3 और B3। तो इसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट है, ये आपका M3 लूप हुआ, ये आपका बेसिक हुआ, ठीक है। K3 का मतलब क्या होगा, K3 1/C3 और यहाँ पर B3 का मतलब R3।
ये आपकी, ठीक है, ये भी आपका खत्म। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बच गए, M1, M2 और M3, राइट। तो M मीन्स इंडक्टर, L तुमने बताया, इसका मतलब M1 का क्या हो जाएगा L1, M2 का क्या हो जाएगा L2 और M3 का क्या हो जाएगा L3, राइट। तो इस पर्टिकुलर 4 से जो कनेक्टेड है वो कितना है, M1 है, तो E से कनेक्टेड आपका L1 हो जाएगा। M2 किससे कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर R1 से और इससे, तो R1 से कनेक्टेड यहाँ पे L2 हो जाएगा, दिस इज L2। और ये कब कनेक्टेड है इससे, B2 और K2 से, राइट, यहाँ पर 1/C2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L3, राइट। तो M1, M2, M3 को मैंने क्या चेंज कर दिया, L1, L2, L3, और जो कॉमन एलिमेंट है वो मास के बीच के एलिमेंट आ गए, और ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, राइट। इसमें किसी को डाउट है, एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ये सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ द एनालॉगस नेटवर्क। यहाँ भी मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिख देना, बाई यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉगी, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। अब यहाँ पर ये मैकेनिकल सिस्टम है, देयर आर 2 मासेस, और 2 मास के बीच में K1 और B1 और K2 और B2 यहाँ पर कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पर जो है B फ्रिक्शन है, तो अपन ये एक्स्ट्रा पेज लेते हैं दूसरा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास ये आपके पास रेफरेंस है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, राइट। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड हैं, M1 एंड M2, राइट। तो देयर आर 2 मास M1 एंड M2, और M1 के बीच में कनेक्टेड है K1 और B1, ये K1 हो गया, ये आपके पास B1 हो गया, और M2 और रेफरेंस में कनेक्टेड है K2 और B2, K2 और B2, और यहाँ पर आपको फ्रिक्शन दे रखा है P, और डिस्प्लेसमेंट जो आपको गिवन है इट इज x1 और x2 एंड फोर्स इज F। तो डिस्प्लेसमेंट इज x1, displacement is h2 and force, external force applied is F। तो ये आपके पास जो है सिस्टम गिवन है, राइट। इस सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप जो भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे जो आपको चेंज करने हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में दैट फोर्स इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज एंड mass is equivalent to inductor and K is equivalent to 1/C and V is equivalent to R and X is equivalent to, इसको तो अब क्या करेंगे अपन, अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू 2, देयर आर 2 मासेस, दैट मींस नंबर ऑफ मेसेज आर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेश आपको देखना है, राइट। तो नंबर ऑफ मेश आर 2, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 मेश बना लिए, देयर आर 2 मैसेज, राइट। और क्लोज लूप, मैसेज बोल सकते हो आप, क्लोज लूप बोल सकते हो, बोथ आर सेम। यहाँ पर 2 मैश बन गए, राइट। उसके बाद में क्या करना है आपको फोर्स से स्टार्ट करना है, राइट।
तो यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे M1 पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मतलब एफ किस में चेंज होगा, वोल्टेज में। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज बना लिया, ठीक है, दिस इज E, राइट। आपके पास फोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देखो दो मास के बीच में जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, राइट। तो यहाँ पर है K1 और B1, राइट। तो K1 किस में चेंज होगा, 1/C1 में। तो K1 यहाँ पे हो जाएगा 1/C1, राइट। और P1 किस में चेंज होगा, R1 में। तो 1/R1, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट लूप, I1 इज सेकंड लूप, राइट। तो दोनों लूप के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो ये एलिमेंट है, राइट। ये भी आपका खत्म, ये भी खत्म, राइट। अब M2 और रेफरेंस के बीच में कौन कौन से हैं, K2 और B2। तो K2 का तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/C2, 1/C2। और एक आपका बन जाएगा B2 का R2, राइट। दिस इज द R2। ये आपका रेफरेंस इसका पॉइंट हो गया, राइट। अब उसके बाद में ये भी आपका खत्म, ये भी आपका, इसको बना दिया, मैंने इसको बना दिया। अब दो एलिमेंट्स आपके पास बच गए, M1 और M2, राइट। तो M का आपके पास हो जाएगा L, और M1 का L1 और M2 का L2। तो दिस इज द L1 और दिस इज द L2, राइट। ये भी आपका खत्म। एक एलिमेंट आपके पास और बच गया है, P, जो कि M1 से कनेक्टेड है, राइट। M1 मतलब L1 से कनेक्टेड है। तो L1 से कनेक्टेड B है, तो B को भी मैं क्या लिखूंगा, दैट इज रेजिस्टेंस R, राइट। तो यहाँ पर R चाहे आप इसके सीरीज में यहाँ पे लगा सकते हो या फिर आप नीचे लगाओ, एक ही बात, राइट। M1 से कनेक्टेड है तो सीरीज में आएगा, राइट। तो या तो आप इसको यहाँ लगा दो, यहाँ भी आप लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको नीचे लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों सीरीज में काउंट हो रहा है, राइट। तो दिस इज द B1 फॉर R1। तो इस तरीके से आप, दिस इज द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसको मैं क्या कहूँगा, एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चेंज कर सकते हो। एनी डाउट? Then we go for the next topology, next analogous system. It is force current analogy. Force current analogy, right? तो आपको सिंपल सा डिफरेंस बता दूं फोर्स वोल्टेज और फोर्स करंट में। जैसे आपने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपने लिया था सीरीज आरएलसी सर्किट, राइट, ठीक है। और फोर्स करंट में आपने क्या लिया था, पैरेलल आरएलसी सर्किट। सेम वहां पर जो फोर्स वोल्टेज के रूल्स में, जहां पर आपके पास, मतलब सिंपल मीनिंग में आपको समझा दूंगा तो आप इजीली बना सकते हो, इन रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में अपन बात कर रहे थे सीरीज, अपन कनेक्टेड कर रहे थे एलिमेंट सीरीज में, तो इसमें एलिमेंट किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में, राइट। इसमें फोर्स एनालॉजी में अपन बात कर रहे थे मैश की या लूप की, राइट। तो यहाँ पर अपन बात किस में करेंगे, नोड की। आपने मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पर आप कंपेयर करा सकते हो। जब फोर्स वोल्टेज में अपन बात करते हैं मैश की, तो फोर्स करंट में अपन बात करेंगे नोड की, राइट। और जो भी एलिमेंट अपन सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं वो किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में, राइट। तो यहाँ पर इन दो चीजें अगर आप याद कर लोगे तो इजीली आप फोर्स करंट जो एनालॉजी भी बना सकते हो, ठीक है। इनके रूल्स क्या क्या है फोर्स करंट का। तो फर्स्ट रूल होगा that in mechanical system the elements in parallel will have the same force, ठीक है। अगर यहाँ पर मैकेनिकल सिस्टम अगर उसके फोर्स अगर सेम है तो अपन क्या कहेंगे, वो एलिमेंट किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मतलब जो एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हो गए उनके फोर्स सेम होंगे, राइट। और इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है उनके अगर पैरेलल में एलिमेंट है तो उनका क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ये ऑलरेडी आप जानते हो, इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम a parallel element will have the same voltage, right? You already know about that, okay? तो वहां पर अपन सीरीज की बात करते हैं, अपन पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है। ईच मास इन मैकेनिकल सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू नोड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। वहां पर अपन क्या बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मासेस इक्वल टू नंबर ऑफ मैश। तो यहाँ पर बात क्या करेंगे, नंबर ऑफ मास इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। तो हियर नंबर ऑफ मासेस इक्वल टू नंबर ऑफ नोड, या मैच किया नोड हो जाएगा। तो इसमें मैंने नेक्स्ट में ये लिख रखा है
या नोड्स की जगह करेक्शन कर लेना, मास होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मास। तो नंबर ऑफ मासेज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन मैकेनिकल सिस्टम। थोड़ी इसमें नोड्स ही होगा, नीचे वाले में मास होगा। मैंने करेक्शन कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पर नोड ही होगा, नीचे वाले में मैंने कर दिया है। यहाँ पे इसको नोड भी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास इन मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में भी इंपॉर्टेंट था, द एलिमेंट्स कनेक्टेड बिटवीन टू नोड इन मैकेनिकल सिस्टम और द टू मास, इसको नोड भी बोल सकते हैं या मास भी बोल सकते हैं। द एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू मास इन मैकेनिकल सिस्टम इज प्रेजेंट एज ए कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू नोड। वहां पर अपन देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास वहां पे मेश था, यहाँ पे क्या आ गया, नोड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि दो मास के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे दो नोड के बीच में, ठीक है। अगर सपोज आपके पास ये दो नोड है, तो एलिमेंट इन दो नोड के बीच में कनेक्टेड होंगे। वहां पर क्या हो रहा था, लास्ट वाले में आपके पास दो लूप हैं, तो दो लूप के बीच में यहाँ एलिमेंट कनेक्टेड हो गए थे। बट यहाँ पे नोड के फॉर्म में क्या होगा, दो नोड आपके पास है, सपोज इन दो नोड के बीच में आपके पास एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, राइट। So there is a difference between force voltage force analogy, that elements are connected in parallel and the element between connected between masses is in mechanical system, that particular elements connected in between the nodes in electrical system, right. So these are the rules for the force current analogy, right. तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो। ड्रॉ द एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय यूजिंग द फोर्स करंट एनालॉजी। तो आपके पास ये सिस्टम है, इसको आपको फोर्स करंट एनालॉजी के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो इसको आप इजीली कर सकते हो। तो इसको अपन करने के लिए अपन एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। तो आपके पास सर्किट के अंदर K1 है, M1 और M2 के बीच में B1 और K2 है, इट इज B1 एंड K2। तो दिस इज द रेफरेंस, there are two mass M1 and M2, राइट। इसके बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है एंड K कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पर सिर्फ K, और यहाँ पर आपके पास फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और इसकी वैल्यू है K1, सॉरी ये वाला ऑप्शन है, तो K1 B1 और K2। तो दिस इज द K1 और दिस इज द B1 एंड दिस इज द K2, राइट। और डिस्प्लेसमेंट आर x1 and x2, दिस इज x1 एंड दिस इज, तो दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम। एंड अब इसको मैकेनिकल सिस्टम को आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। तो एनालॉगस सिस्टम लिखना है। तो फोर्स इज इक्वल टू करंट, वी कैन नो दैट M इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू, ये आप टेबल से आप लिख सकते हो, राइट। B इज इक्वल टू 1/R होता है फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट में, और K इज इक्वल टू 1/S। तो ये आपको पहले से लिखना है, राइट। तो नंबर ऑफ मास कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पे नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स आर, राइट। तो दो नोड्स आपको बनाने हैं यहाँ पे। तो मैंने एक आपके पास ये नोड बना दिया और एक आपके पास ये नोड बना दिया। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सपोज V1 से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सपोज V2 से, राइट। तो देयर आर टू मासेज मींस देयर आर टू नोड्स, राइट। अब सबसे पहले आपको किससे चलना है, 4 से चलना है, राइट। तो दिस इज द रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको 4 से चलना है, ठीक है। तो 4 से चलने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड करना है, फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए कौन सा एलिमेंट है, करंट सोर्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर सोर्स से तो मैं क्या एलिमेंट कनेक्ट कर सकता हूँ, करंट, राइट। तो इससे मैंने करंट कनेक्ट कर दिया, तो वो दिस इज द करंट, ठीक है।
और करंट को रिप्रेजेंट कर दिया आई से। तो ये आपका कनेक्शन गया है, राइट। देन आपको क्या करना है, इन दो मासेस के बीच में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, K2 और B1, राइट। तो K2 का तो क्या बन जाएगा, K2 इज बिकम 1/L2, राइट, और B1 इज 1/R1, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट कनेक्टेड है। अब ये जो दोनों एलिमेंट आप बनाओगे वो सीरीज में नहीं बनाओगे, किस में बनाओगे, पैरेलल में। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, the elements are connected in series but force current analogous elements are connected in parallel। तो ये आपके पास नोड, दो नोड हैं या आपके पास दो मास है, तो एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू मासेस इज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स, राइट। तो यहाँ पर आपके पास एक तो क्या बनेगा 1/L2, ठीक है, 1/L2 बनेगा, एक आपके पास 1/R1 1/R1 बनेगा, राइट। और ये एलिमेंट किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। आपके पास इसका और इसका काम हो गया, राइट। अब कौन सा एलिमेंट बचा है, M1 और रेफरेंस के बीच में K1, राइट, K1 बचा है। और M1 के बीच में, तो M1 मतलब कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है, टू नोड्स, ठीक है। तो M1 के बीच में आपके पास कनेक्टेड है दैट इज K1, राइट। तो K1 M1 के लिए मतलब नोड 1 के लिए, नोड 1 के लिए आपको K1 कनेक्ट करना है, तो नोड 1 पर आप इजीली K1 कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो K1 मतलब 1/L1, तो 1/L1, तो इस किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, राइट। तो ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया मैंने। ये आपको सर्किट को अच्छा बनाने के लिए आपको इसको एक्सटेंड कर सकते हो, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है, इस तरह से बनाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 1/L1 इसका काम भी हो गया, राइट। अब कौन सा एलिमेंट बचा आपके पास, 1/L1 हो गया, ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, आई थिंक मास से मैंने अलग बना दिया, M1 एंड M2 सही, नो प्रॉब्लम, 1/L1, तो इसका काम हो गया। अब कौन सा एलिमेंट आपके पास बच रहा है, स्वयं M1 और L1, राइट, दो एलिमेंट्स आपके पास बच रहे हैं। तो M1 किस में चेंज होगा, M1 इज इक्वल टू C1, राइट, और M2 इज C2। अब वहां पर आप M कनेक्ट कर रहे थे सीरीज में, राइट, वहां पर आप किस में कनेक्ट कर रहे थे, एक मेश के सीरीज में, राइट। पहला मेश है तो उसके सीरीज में, दूसरा मेश है तो उसके सीरीज में, तीसरा मेश है तो सीरीज में। यहाँ पर आपके पास क्या है, नोड, तो नोड के आप किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में। इन प्रीवियस फोर्स वोल्टेज एनालॉजी वी कनेक्टेड इन mesh in series circuit, right, and in this particular we are connected to the node to the parallel, right। तो यहाँ पर आपके पास जो M1 है वो आपके कनेक्टेड होगा फर्स्ट नोड में, पैरेलल में, तो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, या आप यहाँ से कर दो, बाहर से कर दो, कि सारे एलिमेंट पैरेलल में है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर भी कर सकते हो, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने कर दिया C1। आप इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, ऑल आर इन द पैरेलल, राइट, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके M2 कनेक्टेड है, इसमें C2, तो M2 इज इक्वल टू C2, तो यहाँ पर कनेक्टेड हो गया C2, ठीक है। ये आपके पास रेफरेंस कोड है, इसको आप हटा दो, ठीक है। दिस इज द फोर्स करंट एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो आपको जो है प्रोसीजर वो है जो सेम लेके चलना है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, और इससे आप इजीली जो है प्लॉट कर सकते हो, राइट। एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गई है इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। जो मैंने करंट सोर्स बनाया है, अब इसको ध्यान से देखना, ये मैंने जो करंट सोर्स बनाया है वो V1 पे बनाया है, राइट, बट ये जो फोर्स अप्लाइड जो है वो M2 वाले पे है, मतलब नोड 2 पे है, तो इसमें करेक्शन कर लेना आप, ये मिस्टेक हो गई। आप देख सकते हो कि जो फोर्स अप्लाइड है वो M2 पे है, बट मैंने जो करंट सोर्स बनाया है वो नोड 1 पे बनाया है, ये आप करेक्शन कर लेना, या यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा।
या करेक्शन कर लेना। आइए यहाँ पे समझ में आ गया। क्या मिस्टेक थी कि यहाँ पर जो मैंने फोर्स अप्लाइड जो है वो M2 पे है, मतलब नोड 2 पे है, बट मैंने जो करंट सोर्स बनाया है वो V1 पे बनाया है। तो ये यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको आप करेक्शन कर लेना। और नोट्स में भी देख लेना करेक्शन है क्या। नोट्स के अंदर भी सही बनाया कि गलत बनाया। ये देखो करंट आई इधर बनाया सही है, नोट्स में सही है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स में सही है, नोट्स में कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है नेटवर्क बना सकते हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास सेम सर्किट है, उसी तरह का कुछ सर्किट है। देयर आर 2 मासेज और ये एलिमेंट आपके कनेक्टेड है, और ये आपको बी यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है, फोर्स अप्लाइड एफ गिवन है। आपको फोर्स करंट एनालॉगी से आपको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 नोड बनाओगे। ये 2 नोड बना लेंगे V1 V2, ठीक है। आप इसके बाद में आपको क्या काम करना है, आपको फोर्स देखना है। फोर्स किस पे कनेक्टेड है, V1 पे, ठीक है। तो मैंने फोर्स पे V, अब यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या हुआ, करंट। तो मैंने यहाँ पे M1 पे मतलब V1, यहाँ पे करंट बना लिया I। ये आपका काम हो गया। M1 M2 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, K1 और B1, राइट। तो K1 मतलब 1/L1, तो यहाँ पे आपका 1/L1 हो जाएगा पैरेलल में, और B1 मतलब R1, तो यहाँ पे B1 मतलब 1/R1 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। ये 2 नोड के बीच में मतलब 2 मासेज के बीच में, तो ये एलिमेंट कनेक्टेड हो गए। उसके बाद में आपके पास M2 रेफरेंस के बीच में कनेक्टेड है। ये M2 आपको मतलब ये नोड 2, M2 मतलब नोड 2 रेफरेंस के बीच में, ये आपके पास रेफरेंस है, पूरा रेफरेंस चल रहा है। तो K2 और B2 कनेक्टेड है, तो K2 मतलब 1/L2 और B2 मतलब 1/R2, राइट। तो इसकी वेलोसिटी सेम है, फोर्स सेम है, कनेक्टेड। अब इस कनेक्टेड किस में होंगे, पैरेलल में। वहां पर अपन सीरीज में कर रहे थे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, राइट। तो एक तो ये आपके पास आ गया 1/L2 और एक आपके पास आ गया R2, 1/R2, राइट। तो आपके पास ये एलिमेंट भी कनेक्शन खत्म। अब क्या क्या एलिमेंट बचे हैं, M1 और M2। तो M1 इन फॉर द नोड 1, तो नोड 1 से कनेक्टेड होगा, तो M इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, that is sorry M is C इक्वल टू C होगा, ठीक है। M इज इक्वल टू C, तो यहाँ पर आप C1 कनेक्ट हो गया नोड 1 पे, और नोड 2 मतलब M2 में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, C2। यहाँ पर आपके पास C2 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट बचा है, कोई बच रहा है, ये B यहाँ पर बचा हुआ है। तो B किसके इक्वलेंट होता है, 1/R के, तो B इज इक्वल टू 1/R। कौन से नोड पे कनेक्टेड है, मास 1 पे, तो मास 1 मतलब नोड 1, तो नोड 1 से एक और एलिमेंट कनेक्ट कर दो, ये 1/R। यहाँ पे सारा जो सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज द एनालॉग नेट। इस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करोगे तो लगभग विद इन 1 या 2 मिनट में आप बना सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस नेटवर्क। इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। एनी डाउट?